Hello everyone, welcome to my new YouTube channel Recall IAS. On this YouTube channel, I will explain my evaluated answer copies of anthropology optional from the very prestigious institute of the civil services coaching. In this session, I will explain the one of the very famous anthropologist of anthropology um, subject. First, I will explain. Here we can see one of the anthropologists is E.B. Tylor. Here is a question: is contribution of E.B. Tylor. This question is for 20 marks. So we have to write 4 pages answer for this question. So I wrote here the introduction is E.B. Tylor was a British anthropologist widely known as a father of modern anthropologists. In this book, in his book Primitive Culture, here we have to remember this name, Primitive Culture 1871, because we get good marks after we wrote the name of the book. He defined the concept of culture and concept of survival. From our introduction itself, we get the idea what should we write in the whole answer. If we wrote our introduction clearly, it get evaluator get idea what student has wrote. So we have to clearly mention our introduction very fine. Evaluator give me the comment that mention that he belonged to the classical evolutionary school of thought. Okay, that means I miss one very important point, that he belonged to classical evolutionary thought. We should mention that, but sometime we have a very less time, very less space, so we have to decide what should mention, what should not be mentioned. Okay, next here I do one mistake. Here I wrote introduction, after this I wrote 3-4 lines, which is actually not necessary to write here, because here I wrote the idea of his idea, मतलब उसने किस किस पर उसके विचार दिए, like cultural evolution, psychic unity of mankind, cultural parallel, origin of religion. I thought that I should explain this point further in my answer writing. Okay, but we should not write like this here, it will make negative impression on the evaluator. So they mentioned here also. Okay, सी वो हमने इंट्रोडक्शन तो लिख ली है, अभी हमें पब्लिकेशन लिखना है. पब्लिकेशन मतलब क्या, उस थिंकर ने किस किस बुक लिखी है. लाइक ही रोट प्रिमिटिव कल्चर 1871. his second very famous book researches into the early history of mankind and development of civilization, also Anna Hawke in 1861. Here we should remember this name of books and also the year of publication. It gives us very good mark. Like here you later mentioned that it's valid. Okay, it is a 20 marks question, so we have to write minimum 4 pages. So we have to explain everything in contribution. ए.बी. टाइलर ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, तो फर्स्ट ए.बी. टाइलर ने कल्चर की डेफिनेशन दी है, कल्चर कैसे इवॉल्व होता है वो लिखा है. उसके बाद उसने प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल पैरेलल देखा है, कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवर दिया है. उसके बाद उसने साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड बताया है. उसके बाद उसने ओरिजिन ऑफ रिलीजन बताया है. ओके, और उसने कौन कौन से मेथड यूज़ किए वो भी यहाँ मेंशन है, राइट. और उसके बाद हम क्रिटिसिज्म लिखेंगे. ओके, सो हम पहले से स्टार्ट करते हैं. देखिए, ई.बी. टाइलर एक क्लासिकल इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट था. उसका माइंडसेट क्या कहता है कि वो
जो सोसाइटी होती है वो एक फॉर्म में ओरिजिन होती है कि एक के बाद एक के बाद एक, लाइक पहले सैवेजरी होगा, उसके बाद बारबेरिज्म, उसके बाद सिविलाइजेशन। ओके, तो उसने कल्चर की स्टडी की। जब उसने कल्चर की स्टडी की तो उसने उसके प्रिमिटिव कल्चर, ये जो बुक है उसने उसमें कल्चर की डेफिनेशन दी। वेरी सिंपल डेफिनेशन है। He defined culture as a complex whole in which he include knowledge, belief, custom, morals, art, laws, and other capabilities acquired man as a member of society। हमें ये डेफिनेशन याद नहीं रहती, इसके लिए हम एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है वो याद रखना ज़रूरी है। ओके, वो फॉर्मूला है KBCMLA। अब KBC मतलब क्या है? के मतलब, एक मिनट, के मतलब नॉलेज, के मतलब नॉलेज, बी मतलब बिलीफ, सी मतलब कस्टम, एम मतलब मोरल्स, एल मीन्स लॉस, एंड ए मीन्स आर्ट, and we should further mention other capability acquired as a man as a member of society। okay, उसके बाद वो फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट था जिसने साइंटिफिक ही फॉर्मुलेट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ कल्चर। उसके पहले भी कल्चर की डेफिनेशन थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसने दी, और वो साइंटिफिक थी। इसीलिए जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए डेफिनेशन ऑफ कल्चर, तब आपको प्रिमिटिव कल्चर की ई बी टाइलर की ही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, दिस। ओके, उसके बाद उसने यूनिलाइनर इवोल्यूशन का भी कंसेप्ट दे। टाइलर proposed society progress to a single line of development, okay, evolved from savagery to barbarism to civilization। okay, जब उसने कल्चर और सोसाइटी का स्टडी किया तो ही रिप्रेजेंटेड इवोल्यूशन इन यूनिलिनियर मैनर। लाइक पहले हम सैवेजरी फेज में हो गए, उसके बाद हम बारबेरिज्म फेज में हो गए, उसके बाद हम सिविलाइजेशन फेज में हो गए। लाइक ओके, हियर थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल पैरेलल। उसने उसके बाद प्रिंसिपल आपको याद रखना पड़ेगा। एंथ्रोपोलॉजी में आपको मगअप करना बहुत ज़रूरी होता है, किसके बाद क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब जब आप कल्चर की डेफिनेशन लिखोगे उसके बाद आपको ये लिखना है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल पैरेलल। प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल पैरेलल क्या है? जो कल्चरल ट्रेट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली डेवलप करते हैं डिफरेंट सोसाइटी में इन सिमिलर कंडीशन, ह्यूमन सोसाइटी और जोग्राफिकली अनकनेक्टेड। फॉर एग्जांपल, कोई कल्चर और कोई सोसाइटी अगर एशिया कॉन्टिनेंट में है और कोई सोसाइटी अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, दिस टू सोसाइटी आर जोग्राफिकली very unconnected from each other. There is no direct land connection. So if if Asia continent and American continent have same culture, that means they independently developed, because Asia continent and American continent have similar condition. That's why for here is an example. Sun worship in ancient Egyptian and Mesoamericans, मतलब यही एग्जांपल हम कौन से आशिया इन आशिया कॉन्टिनेंट, इजिप्ट इज इन आशिया कॉन्टिनेंट and Meso America in American continent. But in both civilizations, sun worship is done. So how these two unconnected people
do sun worship at the same time, because their psychic unity of mankind, because the geography similar condition, अगर कल्चर की सिमिलर कंडीशन होगी तो कल्चर सेम लेवल में ग्रो होगा. Here fourth point is concept of survival. Here I do very general definition of culture, that means certain custom, beliefs, practices persist over the time even they have lost their original utility. This called as survival. Survivors serve as evidence of earlier cultural evolution, but this is general definition. Here is a proper definition as given by the evolutioner. जिसने भी मेरा पेपर चेक किया उसने भी डेफिनेशन दिए कि A.B. Tyler defines survival as processes, customs, opinions and so forth which have been carried by the force of habit into the new state of different from that. क्या बोलता है? प्रोसेसेस कस्टम्स. कस्टम मीन्स जो भी हम फॉलो करते हैं. ओपिनियन जो भी हमारे किसी भी रिचुअल के बारे में जो हमारे ओपिनियंस होते हैं. एंड अदर फोर्थ अदर जो भी कल्चर के रिलेटेड है वो कैरी करते हैं हम. लाइक जो भी हमारे पूर्वजों कल्चर फॉलो करते हैं वो हमने कैरी किया है. इसमें कैरी करने में कौन सी चीज़ हमें हेल्प करती है? तो हमारे हैबिट होते हैं. जो हम हमारे ग्रैंडफादर करते थे वो हमारे फादर ने किया, वो जो हमारे फादर करते थे वो हम कर रहे हैं. वो जो हैबिट का फोर्स है ना, वो हैबिट का फोर्स सोसाइटी को फोर्स करता है कि जो सर्वाइवल था, जो कल्चर था, वो आगे लेकर जाने के, वो लेगेसी आगे मेंटेन करने के लिए फोर्स करता है. और जो हम लेगेसी मेंटेन करते हैं उसे ही इस कल्चर का सर्वाइवल माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हियर आई गिव एग्जाम्पल. टाइंग थ्रेड फॉर द प्रोटेक्शन इज अ कॉमन इवन टुडे विच वॉज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम ब्लैक मैजिक. आज भी हम देखते हैं कि घर के लोग बोलते हैं वो देवी का धागा बांध लो, वो हमारे कुल देवता का धागा बांध लो, वो बांधने से वो अच्छा प्रोटेक्शन होते, किसी की नज़र नहीं लगती. वो आज भी करते हैं. शायद आज वो धागा उतना काम करे या ना करे, लेकिन आज भी हम वो फॉलो करते हैं. क्यों? क्योंकि वो हैबिट बन जाए. हमारे ग्रैंडफादर ने भी बांधा, हमारे फादर ने बांधा और हम भी बांध रहे. वो बिलीफ है हमारा. लेकिन जो हमारी प्रिमिटिव स्टेट्स थी उसमें वो धागा इसलिए बांधते थे कि बैक मैजिक से हमें प्रोटेक्शन मिल जाए. आज के दिन में उसका यूटिलिटी हो अगर ना हो, फिर भी हम उसे टाई करते हैं हमारे हैंड पर, रिस्ट पर. ओके, दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ सर. जो कल्चर हमारे प्रिमिटिव सोसाइटी के मेंबर फॉलो करते तो उसका कुछ पार्ट आज भी हम फॉलो करते, उससे सर्वाइवल बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट इज साइकिक यूनिटी ऑफ माइंडकाइंड. अगर किसी सोसाइटी में सिमिलर एनवायरमेंट कंडीशन हो तो ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेस इन सिमिलर मैनर. ऐसा E.B. टाइलर का मानना है कि किसी भी सोसाइटी में अगर जोग्राफिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन सेम होगी तो उनका एटीट्यूड सेम होगा. सो उसका वो साइकिक यूनिटी मैनकाइंड के कारण वहाँ का कल्चर जो होगा वो सिमिलर मैनर में ग्रो होगा. ऐसा E.B. टाइलर जी का मानना है. ओके, और लास्ट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही गिवन दिस, ये ओरिजिन ऑफ रिलीजन. रिलीजन कैसे डेवलप हुआ. E.B. टाइलर की दिस थ्योरी इन प्रिमिटिव कल्चर. वी मस्ट एक मेंशन प्रिमिटिव कल्चर बुक. ही सेड दैट जो भी कल्चर होगा वो इनलिनियर मैनर में होगा, लाइक सैवेजरी, बारबेरिज्म और सिविलाइजेशन. सिमिलरली वो रिलीजन की डेवलपमेंट कैसी हो गई. एनिमिज्म, सोल में बिलीव करने वाले. पॉलीथिज्म, 2 और मोर गॉड में बिलीव करने वाले. मोनोथिज्म, एक गॉड में बिलीव करने वाले. साइंस मीन्स क्या? रीजन बिहाइंड एवरीथिंग विच इज हैपन इन सोसाइटी. सो ही बिलीव दैट कि अगर
रिलीजन के रीज़न हमने फाइंड आउट कर लिए और एक्सप्लेनेशन दिए गए कि अगर रिलीजन में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो वो साइंस माना जाएगा। किसी भी चीज़ का जब हम एक्सप्लेनेशन देते तो उसे हम साइंस मानते। ओके, तो उसने क्या किया, जो सैवेजरी पीपल होते हैं वो सोल में बिलीव करते थे, तो उन्होंने सैवेजरी फिलोसोफर को जैसे माना, लाइक तो उसने प्रिमिटिव मैन को फिलोसोफर माना। ये उसका एक्चुअली ये इसका एक क्रिटिसिज्म है, आगे हम इसे मेंशन करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम एवरी लिविंग ऑन लिविंग नॉन लिविंग बॉडी हैव ड्यूअल एग्जिस्टेंस, लाइक उसको बॉडी भी होगा सोल भी होगा। He considered soul superior. Primitive people consider soul superior because they have dual existence, like mobility and durability. Okay, जब सैवेजरी पीपल क्या करते थे, वो प्रेयर करते थे, वर्शिप करते थे, किसकी, सोल की, सो उसे उसे हम कहते हैं एनिमिज्म। ओके, वैसे ही इन बार्बरिज्म क्या हो गया, वो स्पिरिट हो गया ना, उसको गॉड बोलने लगे, उसका एग्जिस्टेंस मानने लगे कि बाबा यहाँ हमारे यहाँ रहते वगैरह वगैरह। उस गॉड रूल्ड फॉर स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ नेचर। क्या होता था, अगर नेचर में लाइटनिंग हो गई तो उसे सेवेजरी पीपल क्या मानते थे कि ये किसी लाइटनिंग में सोल है, इसलिए वो लाइटनिंग कर रहे हैं। लेकिन इन बार्बरिज्म हम ये नहीं कहते कि लाइटनिंग में सोल है, हम कहते हैं देयर इज वन गॉड, गॉड वो सब कर रहा है, गॉड सब कंट्रोल कर रहा है नेचर के जो भी नेचर में हो गया है, और हर एस्पेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट गॉड माना। लाइक अगर बारिश हो गई तो बारिश के गॉड की वजह से हो गई, अगर लाइटनिंग हो गई तो लाइटनिंग के गॉड की वजह से, अगर फ्लड आ गया तो रिवर के गॉड से वजह से। इसलिए एवरी एस्पेक्ट हैव अ डिफरेंट गॉड, ऐसी उनकी मान्यता थी। ओके, ये हो गया बार्बरिज्म। इन सिविलाइज लाइक इन आवर civilization society all soul belong to one entity and it is called। अब क्या हो रहा है कि अगर बारिश हो जाए, अगर लाइटनिंग हो जाए, अगर फ्लड आ जाए, जो भी चीज़ ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है वो अगर हो जाए तो वो गॉड करते हैं, और हम वो सबको एक ही गॉड मानते हैं, उसे कहते हैं मोनोथिज्म। ओके, और ये सेवन मतलब ये सेवन डिफरेंट है, ये सेवन ऐसा है। ओके, ये ऐसा 7 पॉइंट है और ये सेपरेट 7। इसमें क्या किया है हमने कि जो भी मेथड यूज़ किया है किसने, एबी टाइलर ने, जब इस सोसाइटी के लोगों को और स्पेसिफिकली ट्राइब को स्टडी वक्त उसने क्या किया है कि टाइलर वाज ये आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। वी कैन राइट दिस एज ए क्रिटिसिज्म आल्सो। ओके, क्रिटिसिज्म आल्सो वी कैन राइट दिस। उसने क्या किया, कंपैरेटिव मेथड यूज़ की कि उसकी जो सोसाइटी है, एक्चुअली ही वाज फ्रॉम अमेरिकन इलाइट सोसाइटी, जिसे हम यूरोसेंट्रिक सोसाइटी भी कहते हैं, इलाइट सोसाइटी। तो उसने उसकी सोसाइटी एंड प्रिमिटिव ट्राइबल लोगों की सोसाइटी कंपेयर की, और जो भी चीज़ उसे मिला उसे उसने लिख दिया। उसने उसकी सोसाइटी को अपग्रेडेड सोसाइटी बोला, वो एक्चुअली एक क्रिटिसिज्म है उसका, राइट। उसने क्या किया कि 282 सोसाइटी का सैंपल लिया और उसको स्टडी किया और एक कल्चरल इवोल्यूशन की थ्योरी मांडी। एक्चुअली हिज मेथड है ना, ये एक्चुअली ऑल दीज मेथड्स आर क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, अब हम इसके क्रिटिसिज्म लिखेंगे। ओके, देखिए ये आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी, इसने किसी भी सोसाइटी में जाके कोई स्टडी नहीं की, फील्ड वर्क नहीं की, इसीलिए ये पहला क्रिटिसिज्म होता है कि ये आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। ओके, दूसरा क्रिटिसिज्म है यूरोसेंट्रिक एंड इवोल्यूशनरी बायस था। अब ये क्या होता है कि
उसने कंपेयर की उसकी सोसाइटी एंड प्रिमिटिव सोसाइटी के, यानी उसने खुद की सोसाइटी को अच्छा माना। उसका व्यू था कि उसकी जो विक्टोरियन सोसाइटी है ना वो बहुत अच्छी है, तो उसने इग्नोर किया क्या फैक्टर क्या है जो अच्छी चीज़ें होती है प्रिमिटिव कल्चर की, उनकी जो डेवलपमेंट उन्होंने किया उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, इसीलिए इससे भी क्रिटिसिज्म माना जाता है। नो साइंटिफिक एविडेंस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलीजन, जो उसने थ्योरी ऑफ रिलीजन मान जो दिया है ना, एनिमिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म एंड साइंस, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस ही नहीं है उसके पास, इसीलिए वो भी क्रिटिसाइज किया जाता है। और इसने अदर सोशल एंड कल्चरल चेंजेस निगलेक्टेड, उसने क्या किया कि उसने माना कि एवरी सोसाइटी इवॉल्व इन लीनियर मैनर, और अगर वो जोग्राफिकली भी अनकनेक्टेड है तो भी उनमें सिमिलर डेवलपमेंट है, सिमिलर ट्रेड्स है, क्योंकि साइकिक यूनिटी माइंड ऑफ माइनकाइंड। बट जब उसने साइकिक यूनिटी ऑफ माइनकाइंड की थ्योरी दी तब वो उसने इग्नोर किया डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, दैट मीन्स व्हेन माइग्रेशन टेक्स प्लेस or this due to this colonialism, when there are a lot of people migrate from one place to another place, so when people migrate they also along with their culture also migrate, their cultural trait and idea will be shared where they come. Okay, so he actually neglected very important aspect, that mean diffusion of culture. Here is a case that because of this ignorance there is a one school developed later, that is diffusion school, we will study after later. Okay, here my evaluator give me some suggestion, क्या दिया है उन्होंने कि फ्रांस बोस रिजेक्टेड, हाँ वी हैव टू मेंशन, क्या मेंशन करना है कि वी हैव टू मेंशन कि किसने क्या, वी हैव टू मेंशन कि किसने क्या क्रिटिसाइज किया, लाइक फ्रांस बोस रिजेक्टेड यूरोसेंट्रिक अप्रोच बिकॉज एक्चुअली ही डिड फील्ड वर्क, एंड फ्रांस बोस ने रेसिज्म के खिलाफ भी बातें लिखी, वो नहीं मानता था कि यूरोसेंट्रिक जो विक्टोरियन सोसाइटी है और वो जो प्रिमिटिव सोसाइटी उनमें कंडीशन अलग है, इसलिए डेवलपमेंट अलग है, ऐसा फ्रांस बोस मानते थे, इसलिए उन्हें यूरोसेंट्रिसिज्म का क्रिटिसाइज किया। ओके, आल्सो लैक ऑफ डाटा कलेक्शन बिकॉज उन्होंने फील्ड वर्क ही नहीं किया था। मैरिड गिव कॉन्ट्राडिक्टेड टू हिज इवोल्यूशन, ये मैंने भी नहीं पढ़ा तो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, सो हियर आई रोट माई कंक्लूजन, क्या लिखा है कि Tyler's theories are simplistic and Eurocentric, even though his contribution pioneered modern anthropologists and his work remained relevant for tracing cultural evolution. क्या हुआ है ना, ये 19th सेंचुरी के एंथ्रोपोलॉजी, जो पहले गिने चुने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनमें टाइलर है। भले उनके स्टडी में कितने भी फ्लॉज हो गए लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये मैंने कंक्लूजन में लिखा है। I hope you all understand, and if you want anything should be mentioned in this answer you can comment, and if you want any betterment in my explanation also you can comment in comment section. Thank you for watching video.